So good evening everyone. Good evening. Turn on your cameras everyone. Everyone, फटाफट से turn on कीजिए. And welcome back to the session. How are you doing all? Fine, sir. Good evening, sir. Vasist, Saibo Reddy, Raghav, Lepakshi, welcome to the class. I think you are a newcomer, isn't it? Yes, sir. Lepakshi Reddy, turn on your cameras. Turn on your camera. Yes, Lepakshi. Good evening. Lepakshi, good evening. हाँ Who is that? राघव, क्या हाँ बोल रहे हो? किसको बुला रहे हो भाई? गुड इवनिंग सर। तो वीडियो एक सेकंड में तो रजिस्टर निकाल रहा हूँ, बस एक सेकंड में वीडियो ऑन करता हूँ।
Guys, till what we have done? Till lower triangular matrix, isn't it? Yes, sir. Lower triangle. Chalo. Next I'm going to talk about equality matrices and equivalent matrices. Many children will think that both are same, but both are far different. Equality and equivalent. Equality of matrices एंड इक्विवेलेंट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर ही क्या है इसके दोनों के बीच में, मुझे बताइए. एनीवन? गाइस लुक एट दिस हियर. अगर मैट्रिक्स कोई ए मैट्रिक्स which is A I J which is M by n, ठीक है. अगर कोई मैट्रिक्स ले लो इधर B, अगर इधर कोई मैट्रिक्स ले लो B, ठीक है. B मैट्रिक्स आई एम टेकिंग इट एज BIJ क्या है इधर? BGM नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक, समझ रहा है? BIJ क्या होता है? BIJ मतलब एलिमेंट्स इन B विच आर I एंड रो, I एंड J. I का मतलब रो नंबर एंड J का मतलब कॉलम. तो देखो इसका ऑर्डर कोई भी R/S ले लिया मैंने, ठीक है. I just took any order as R/S, right? So here for multiplication, like for here what I must do, you have to think that, you have to understand that here M supposed to be equal to what? Number of rows of first matrix supposed to be equal to number of rows of second matrix. M ने बराबर होना चाहिए R के बराबर, M R के बराबर होना चाहिए, ठीक है. एंड N इज इक्वल टू S, ठीक है. किसमें? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में. अगर इस पे बात करें तो इधर M इज इक्वल टू R होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन होता है इधर, and one second, either here also N is equal to S, same condition. And a second property, the second difference क्या है इसमें? AIJ is equal to BIJ. Whatever the elements you have in A matrix, that's supposed to be equal to B matrix, which means corresponding elements. ऐसे नहीं है कि कोई भी इक्वल हो जाए, ठीक है. corresponding elements, all right. So corresponding elements supposed to be equal. क्या कर रहा है? Look at this, here कुछ भी नहीं है बस, that's all. इधर कुछ भी नहीं है बस, इधर कुछ भी मत लिखो, इधर बस ऐसा ही है, ठीक है. ये एक होता है इक्विवेलेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? बेसिकली दिस इज द डिफरेंस. ऑलराइट, सो फर्स्ट A is equal to AIJ which is M by N order, which is R/S order. So the equality of matrices means what here? Number of rows of first matrix supposed to be equal to number of rows of second matrix, and number of columns of first matrix supposed to be equal to number of columns of second matrix. Number one condition. And here also same condition follows. In the here second condition, equality of matrices is what? The elements of first matrix supposed to be equal to corresponding elements of the second matrix. That is what equivalent में क्या होता है? रिलेशन एक ही कंडीशन होता है, which is number of rows of first matrix equal to number of rows of second matrix. Number of columns of first matrix supposed to be equal to number of columns of second matrix. ये एक ही रिलेशन, क्या बोलते हैं, एक ही रिलेशन होता है. किसमें? इक्विवेलेंट रिलेशन में. Guys, equality of matrices and equivalent matrices will be comparing if and only if we have two matrices, isn't it? अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है तभी तो हम लोग रिलेट कर पाते हैं, कर पा सकते हैं, isn't it? If not, how can we compare? अरे यार एक मैट्रिक्स को लेकर इक्वल है, उल्टा है, क्या कैसा कंपेयर करोगे? इम्पॉसिबल है ना. हाँ, तो वही से बता रहा हूँ मैंने. तो ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लेकर दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ. तो इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स, ठीक है. एंड दूसरा कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए. वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है. इक्विवेलेंट में क्या है? सिर्फ ना सिर्फ एक ही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, बस एक ही होना चाहिए, ठीक है. ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट. Okay, guys, 1 second, let me turn on my light. 1 second. Now this is what the concept, basic concept, ठीक है. So next we'll talk about algebra of matrices. क्या करने वाले अभी? Algebra of matrices. Boys and girls, I will be writing somewhat fast, so we'll finish it off fast and let us get into the questions. So algebra of matrices. Algebra of matrices का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, इधर सम, हम लोग दो मैट्रिसेस को सम करेंगे, दो, whatever the result you get, that is also, look at this,
लेट मी राइट फर्स्ट ऑपरेशन, 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 इधर इनपुट एंड आउटपुट क्या मिलने वाला है, एंड इधर प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, what are the properties we have, look at this. So first if I talk about sum, operation called sum, operation called sum, the first one if I talk about which is operation sum, ठीक है। अगर देखो बेटा मैंने कोई दो मैट्रिक्स उसको ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो ए मैट्रिक्स इज लेट अस से m by n एंड बी मैट्रिक्स इज लेट अस m by n, ठीक है। तो वट एवर आई गॉट ए मैट्रिक्स आफ्टर गेटिंग ए प्लस बी, मुझे m by n सेम ऑर्डर आई विल बी गेटिंग, ठीक है। और है समझ? See guys, are you able to relate the things? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I add two different matrix with the same order. Look at this A matrix I'm taking with an order of m by n plus same matrix, like B matrix with an order of m by n. After combining those two matrices, after adding these two matrices, whatever the result I'm going to get, that is also will be having m by n order only. Clear? So इसके अंदर properties क्या क्या होता है देखो, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ए प्लस बी इज इक्वल दो मैट्रिक्स ए प्लस बी एंड बी प्लस ए, कौन सा प्रॉपर्टी है ये? Commutative. Commutative. ठीक है। अगर ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या प्रॉपर्टी बोलता है? Associative. एसोसिएटिव। ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया, ये भाई ये कम्युनिटी से आ गया, ये भाई एसोसिएटिव प्रोफेसर हो गया। हाँ अभी देखो, ठीक है, अभी देखो ये दोनों प्रॉपर्टी से आता है, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है 2 + 3 = 3 + 2 होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। हाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए प्लस हाफ बी, ये होता है हमारा एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सो नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट डिफरेंस में क्या है देखो, सेम आता है, कोई मैट्रिक्स m by n का ले लिया, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ए से, ठीक है। सेम व्हाट एवर आई एम गोइंग टू गेट, सेम थिंग, सेम रिजल्ट हियर। सर कौन बोल रहा है? यस बेटा। सर कैंसलेशन लॉ क्या है सर? हाँ कैंसलेशन लॉ, समथिंग वी कैंसिलेशन, हर्ड लाइक कैंसलेशन। हाँ हाँ हाँ, तो आपका मैंने बात नहीं समझा मैंने। सर लाइक दे इन आवर कॉलेज दे टोल्ड कैंसलेशन लॉ सर, सो है क्या बेसिकली अच्छा इन ये, एडिशन? हाँ हाँ, लेफ्ट कैंसलेशन, राइट कैंसलेशन, समथिंग दे टोल्ड सर, आई अरे डिडंट यार, गेट। हाँ ये आपने बोल रहा है तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। हेलो यस सर। बेटा, हम लोग अभी देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैंने ये कैंसिल, ए बी है, कोई बी सी है, ठीक है। नाउ कैन राइट दिस एज ए इज इक्वल टू सी। हाँ वही तो होता है बस, डी बी को कैंसिल करके उड़ा दो, जो बचा है वही बोलता है। सिंपल सा मैंने सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा, ये होता है, इसमें कोई जितना क्या बोलता है, जितना रॉकेट साइंस का उतना सोचने का कुछ नहीं है, वही होता है कैंसिल। ठीक है, आ रहा है समझ? आया? यस सर। Yes. यस सर। हाँ मौस ले चलो नेक्स्ट। आपको अगर चाहिए, देखो कोई ए बी है एंड कोई ए सी है, इधर ये क्या है? नॉन जीरो है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये नॉन जीरो है, ठीक है। अगर मैंने ये देखो बेटा, इसको मैंने देखो, मैंने इसको लिख सकता हूँ बी इज इक्वल सी, आराम से, ठीक है। Yes, sir. आ रहा है समझ? Yes, sir. ये होता है कैंसिलेशन, मतलब इससे ज्यादा कोई नहीं, बट मगर ये शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो है तो दोनों जीरो जीरो हो जाएगा, हमारे माथा पे पीठ पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ जीरो नहीं होना चाहिए, ये नहीं जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई ना। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं अभी। चलो सम एंड एडिशन प्रॉपर्टी, सॉरी डिफरेंस। तो डिफरेंस में देखो प्रॉपर्टी है नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव, देखो बेटा कोई नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स
लेट अस से कुछ ए है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स इज क्या होता है, बस माइनस हाफ ये एम, ठीक है, ये होता है नेगेटिव। आ रहा है समझ, बस यही प्रॉपर्टी है इसमें, अगर समझ आ रहा है, समझ रहे। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, next scalar multiplication. Scalar multiplication is nothing but if I multiply two properties, look at this, if I multiply any property with a constant which is k, ठीक है, इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स विच इज m by n ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वेयर k इज नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा वेयर k इज नॉट इक्वल टू जीरो, आ रहा है समझ, Yes, sir. k इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, नाउ लुक एट दिस हियर, एंड इफ आई राइट दिस, सो व्हाट इज माय, ये इनपुट है मेरा, अगर मैंने किसी को के कांस्टेंट को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो मुझे ये आता है कि A order mn. ये होगा यार, बस ये होता है, एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है इधर, कांस्टेंट के गेट्स मल्टीप्लाइड विथ हर एक एलिमेंट, विथ एवरी एलिमेंट, आ रहा है समझ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये होता है ना, देखो कोई मैट्रिक्स, देखो ये मैट्रिक्स विच इज m by n इनटू कोई मैट्रिक्स बी, कोई ले लो r क्रॉस s, ठीक है, इधर क्या होना चाहिए, ये n के बराबर, n r के बराबर होना चाहिए, then only the matrix multiplication is possible. Number of columns of first matrix supposed to be equal to number of rows of second matrix, ये ध्यान से सुनिए, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, सर नंबर ऑफ कॉलम्स, r का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, दोनों बराबर होना चाहिए। हमारा आउटपुट क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, फिर से m क्रॉस s, ये हमारा ऑर्डर आएगा, ठीक है, आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। Yes. हाँ, देखो इधर क्या आएगा, अभी देखो मल्टीप्लाई करने के साथ मुझे मिलेगा m क्रॉस S. s आउटपुट, ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। हाँ, अभी देखिए इधर बेटा, देखो द फर्स्ट थिंग, इसमें थोड़ा देखो, इसमें फर्स्ट कोई भी देख लो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, इधर ए बी हमेशा बी ए के साथ बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, ए बी नेवर इक्वल टू बी ए, वाई बिकॉज द ए रीजन होता है, रीजन ये है कि नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ वो कभी भी नहीं मैच करेगा बी ए से, ठीक है। हाँ, देखो कभी भी नहीं इक्वल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है ए ऑफ बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी कौन सा है बताओ मुझे, ए बी Distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव, आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग ए विद बी एंड सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ आई राइट ए ऑफ बी सी, ये एसोसिएटिव ए बी सी, ठीक है। द फोर्थ वन, सो इफ आई मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ले लो कुछ भी, कोई भी सेम ऑर्डर लाइक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मुझे रिजल्ट कभी भी सेम मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। एंड ये इसके साथ बराबर भी हो सकता है, ठीक है, इंटू ए एम बाई एम, आ रहा है समझ भाई, मैंने सिंपल सा बता रहा हूँ, ए इंटू आई ऑलवेज विल बी इक्वल टू, a into I always will be equal to a only, and this can be written as I into a will be always also equal to a only। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स मिलेगा। अरे यार भाई देखो 1 इंटू टू, टू ही मिल रहा है ना, 2 इंटू 1 2 ही मिल रहा है ना, अरे Yes, समझ, sir. हाँ वही है, वही बात है इधर, Yes, sir. दैट इज व्हाट द थिंग, ठीक है। आई थिंक यू जस्ट अंडरस्टूड दिस, वन सेकंड, थोड़ा इसको ऐसे बॉक्स में,
All right. So now we'll talk about transpose of matrix. Next, we'll talk about transpose of matrix. Next thing is what? Transpose of matrix. Any idea what is transpose of matrix? Rows we write Sir, rows will become column and column become rows. हाँ देखो, कोई मैट्रिक्स ऐसा लिख लो, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में, देखो आपको समझ में आया ना, A11 A12 कुछ भी है ना ऐसा, A13 वो कॉलम में बन जाएगा बस, A21 A22, अगर ये मैट्रिक्स है विच इज़ 2x2 मैट्रिक्स, इसको हम लोग अगर इसका ट्रांसपोज मैंने ट्रांसपोज विल बी ऑलवेज डिनोटेड बाय A⁴t, दिस विल बी कमिंग व्हाट नाउ A11 एंड A21 A12 A22 कॉलम। भाई ये तो खड़ा हुआ है ना, इसको सुला दे बस, आ रहा है समझ, मेक देम स्लीप, दे आर स्टैंडिंग नाउ, मेक देम स्लीप, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। ऐसा है तो ऐसा कर दो बस, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो बस, आ रहा है समझ, Yes, अंडरस्टैंड? sir. यस, ये Yes, sir. इससे बड़ी बात कोई नहीं है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है, वी डोंट हैव मोर देन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सो रहा है तो उसको उड़ा दो, उड़ा तो उठ रहा है तो उसको सुला दो बस, ठीक है। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज, सिर्फ प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी होता है बेटा, देखो कोई देखो ए ट्रांसपोज ओल ट्रांसपोज है तो हमेशा ए ही होगा, ठीक है। सो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, अगर किसी किसी कांस्टेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो के तो ए ओल ट्रांसपोज इज इक्वल के इंटू ए ट्रांसपोज, आ रहा है समझ। सो तीसरा प्रॉपर्टी होता है, so a plus or minus b whole transpose gives me that, so a transpose plus or minus b transpose, alright. So the fourth one gives me that, so a b whole transpose is equal to b transpose into a B transpose। transpose is transpose. ये हमारा रिवर्सल होता है, ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है, तो इसको क्या करो, ऐसा कर दो बस। अरे यार ये क्या आ रहा है, बस इसको ऐसा कर दो बस, अरे रिवर्सल आ रहा है समझ, अंडरस्टूड चिल्ड्रन। सो ये प्रॉपर्टीज होता है, सो ये ट्रांसपोज ओल ट्रांसपोज ऑलवेज ये के इंटू किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से के इंटू ए ट्रांसपोज, ए प्लस आर माइनस बी, इधर दोनों ए प्लस बी ओल ट्रांसपोज गिव्स मी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी ओल ट्रांसपोज गिव्स मी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए बी ओल ट्रांसपोज ऑलवेज रिवर्सल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस क्या क्या है, टाइप्स of square matrices, types of square matrices. The first matrix is going to be symmetric. Symmetric matrix का मतलब होता है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स ले लो A which is Aij is symmetric if and only if A transpose is equal to A होना चाहिए, अगर उसको ट्रांसपोज भी करने से ए ही मिलना चाहिए, वो होता है ट्रांसिमेट्रिक। लुक एट दिस, अंडरस्टूड चिल्ड्रन। Yes, sir. स्क्यू सिमेट्रिक का होता Skew है, symmetric. हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर कोई मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ये आई जे है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही इफ ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए, आ रहा है समझ, ए ट्रांसपोज माइनस Yes, ए के sir. बराबर, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, आ रहा है समझ, माइनस ए। एंड गाइस लुक एट दिस हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर नोट लिख लीजिए, नोट, इधर देखो बेटा, मैंने कभी भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix A is equal to sum of half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose, और है समझ, ये होता है हमारा कभी भी बिंदास वाला नोट, नोट है बिंदास,
इसका नाम ये है। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक वैल्यू है ना सर? हाँ हाँ, सॉरी, क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। इधर देखो, ये आई जे, इधर एक कंडीशन है, ये आई आई हमेशा क्या होता है, जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई। ठीक है, देखो इसको कैसा करते हैं, अभी देखो मैं फिर से उसको प्रूफ देता हूँ। हाफ प्लस हाफ इंटू ए बाई टू प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस माइनस विल गेट कैंसिल, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, ए फिर से यही मिल रहा है मुझे, समझ रहे हैं? तो ऐसा वी कैन डू दैट, दैट्स हाउ वी कैन डू दैट। Clear, you can just multiply if you simplify, so again if you simplify, so again you are going to get a only, that's what the concept. Clear? So ओके सर। चलो, अभी हम लोग बात करेंगे नील पोटेंट, आई मीन आइडोम्पोटेंट के बारे में। व्हाट इज आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स? आइडोम्पो आइडोम्पोटेंट आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडोम्पोटेंट के बारे में बात करेंगे तो अगर ए स्क्वायर करेंगे तो ए ही मिलना मुझे, ठीक है, वो आइडोम्पोटेंट होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल ए ओनली, दैट इज आइडोम्पोटेंट। क्लियर? नेक्स्ट नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है। नील पोटेंट is nothing but nilpotent is nothing but A is a nilpotent of any order k if उसका a पावर ऑफ k, ठीक है, a पावर ऑफ k इज इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। ठीक है, a पावर ऑफ k, nilpotent मतलब आ रहा है ना जीरो के बराबर, नील नील कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो। ठीक है, हाँ इधर देखो बेटा, वेयर वेयर k क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? ये क्या है हमारा, ये पावर है, के इज पावर हियर नॉट कांस्टेंट, यू टेक एन आल्सो नो मैटर, इफ यू टेक एन आल्सो नथिंग, नो प्रॉब्लम हियर। सर ए की वैल्यू तो फिर जीरो ही रहेगी ना, क्योंकि तो एन की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो जीरो ही आएगा। क्या? ए की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि हाँ ए जीरो हाँ हाँ, वो तभी। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी तो निलपोटेंट होगा, वही तो कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी। हाँ, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा, ये स्क्वायर करने से मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, आई। ठीक है, सिक्स वन ओके सर। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने जो भी पढ़ा रहा हूँ जेई नीट के ऑर्थोगोनल। लिए। हाँ, ए ट्रांसपोज इंटू ए करने से, आर ए इंटू ए ट्रांसपोज करने से मुझे हमेशा आई मिलने वाला है, ये होता है ऑर्थोगोनल। आ रहा है समझ? आइडेम्पोटेंट का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल ए करना चाहिए, इनवोलेटरी मतलब ए स्क्वायर इंटू आई होना चाहिए, ऑर्थोगोनल मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, ऑलवेज गिव्स मी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, सो ए इज एन इम्पोर्टेंट इफ ऑर्डर एन, तो ए पावर ऑफ एन हमेशा जीरो होना चाहिए, एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इधर। नेक्स्ट, आ रहा है समझ? यस आ रहा सर। है, हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। गाइस आई एम गोइंग बिट फास्ट, so try to follow my pace. ओके सर। Everyone, newcomer, Lepakshi Reddy, are you able to understand? అర్థమవుతుందా లేపాక్షి? ఎస్ సార్. Are you following the class? ఎస్ సార్. అర్థమవుతుంది కదా క్లియర్ గా? అర్థమవుతుంది సార్. ఏం అర్థం కాకపోతే అడగాలి బిడ్డ, ఓకేనా? So trace of a matrix, trace of a matrix, look at this, what is trace of a matrix? If I talk about a matrix which is a I j with of order called m by n, or look at it, m by m you take, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। हाँ ट्रेस, ये होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो बेटा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ यू टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके सर। स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, देन इफ ये इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ट्रेस को टी आर ऑफ ये डिनोट करता है, ठीक है, ट्रेस ऑफ ये इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ आई इज इक्वल टू वन से एन ऑफ ऑल ए आई आई एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल, लेट अस टॉक अबाउट वन एग्जांपल नाउ। देखो मैंने आगे अगर एग्जांपल लिखेंगे तो ए इज इक्वल एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सो सम ऑफ ऑल दिस डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ लो, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ये नाउ, ट्रेस ऑफ ये मतलब 1 प्लस
5 + 9 ये होता है मेरा 15 इज आंसर। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ। सो सम, Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सम ऑफ ऑल ए आई आई, सो ए 1 1 All diagonal elements. ए 3 3 ऐसा होता है, ठीक है। आ रहा है समझ, Yes, sir. कोई डाउट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ ये गाइस, सो फॉर वट एवर वी हैव गॉन थ्रू, दिस इज अ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, इससे ज्यादा कोई डेटा जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैक्सिमम 99% इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई वही 1% होता तो नहीं बोल सकते, मगर हाँ कहाँ बीच में आएंगे तो उसको बारे में डिस्कस कर लेंगे, बट 99% दिस इज मोर देन एनफ टू सॉल्व यही क्वेश्चन। नेक्स्ट डिटरमिनेंट, नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डिटरमिनेंट। व्हाट इज डिटरमिनेंट, व्हाट इज डिटरमिनेंट, एनी वन ऑफ यू? डिटरमिनेंट का मतलब, एनी वन ऑफ यू? Lepakshi, have you done with your matrices lesson in your college? Which college you are from? Chaitanya, sir. Chaitanya, which branch, beta? Narsingi, sir. Narsingi, sir. Narsingi, I mean this side, High Tech City side. Yes, sir. Gachibowli, sir. Great. Then have you done with your matrices and determinant lesson? Yes, sir. Okay, then tell me what is determinant, what exactly is determinant, how would you define it? So beta, look at this, no problem. Every square, कोई square matrix ले लो, every square matrix. Guys, basically in determinant lesson we'll be talking about entire, we'll be talking about क्या, square matrix के बारे में बात करेंगे हम लोग पूरा, ठीक है। Every square matrix can be associated, to a unique number और कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू ए नंबर, उसको बोलता है, देखो बेटा मैंने डिटरमिनेंट ऑफ, आफ्टर डिटरमिनेंट लाइक आई विल बी गेटिंग, इफ आई गेट 2 दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज, देखो एक यूनिक नंबर आना है ना, एक यूनिक नंबर आ रहा है आफ्टर फाइंडिंग ए डिटरमिनेंट, आई एम गेटिंग यूनिक नंबर। सो लेट अस सी द एग्जांपल सो यू विल अंडरस्टैंड दैट। एंड लुक एट दिस, डिटरमिनेंट ऑफ a matrix A is denoted as ऐसा, और det A और ऐसा डेल्टा, ठीक है। कोई भी डिनोट कर सकता है। आ रहा है समझ, एनी डाउट? सिंपल सा बात है, वेरी सिंपल थिंग, राइट। Next, now by using this determinant, how can we find out area of triangle? What is determinant basically? Look at this, how to find determinant. Basically, if I talk about, let us say example, let us talk about one example, basic example. If I have given a matrix as 1 2 3 4 5 6 7 8 9, well, I'm asking you to find what is determinant A. Find determinant A. How to find it out? Look at this, I'll be closing this element, row and first column. So 1 into, so 5 into 9 minus, I'm just crisscross. All right, 8 into 6. Again, minus 2. Then I have to close that particular corresponding row and column of that 2 and just multiply with the remaining numbers. 4 into 9 minus 7 into 6. Guys, any doubt here? Any doubts? No, sir. So 4 into 8 minus 7 into 5. ठीक है, so 1 into, so 4 5 45, 45 minus 48, how much? Minus 3 here, how much? 36 minus 42, minus 6 plus 12, isn't it? So here 32 minus 34 minus 3, so minus 9, isn't it? minus 9. So कितना मुझे कितना मिला? 12 minus 12 कितना मिला? 0. तो डिटर्मिनेंट कितना आया मुझे? 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 है बेटा, आ रहा है समझ, कोई डाउट इधर? No, sir. Any doubts? What about others? See here, this will be positive, this will be negative, this will be positive. So here I am writing minus. Why? Because the cofactor of that particular second row and second column is what? For the first row and second column is what? Always minus. So we'll be discussing it. This is the basic procedure of solving determinant. Clear? Any doubts, children? Already you might have learned in your college days, today's school days. Any doubt? Any doubt? No. So now let us, this is the basic procedure. Now let us talk about
Let us talk about area of triangle. By using this determinate concept, how can we find out area of triangle? Okay. Area of a triangle. Area of a triangle. Okay. So look at this now. So if I have vertices, let if I have vertices called x1 comma y1 comma x2 comma y2 and x3 comma y3. Then area of triangle is half of x1 x2 x3 y1 y2 y3 इधर 1 1 1 ठीक है। हाँ इज इक्वल ये क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ठीक है। इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं 1 1 1 एंड में लास्ट कॉलम। हाँ see here why because we don't have that other factor like x1 x2 x3 ये होता है फॉर्मूला y1 y2 y3 by and if I have vertices don't tell me that sir half into base into height वो trigonometry or geometry part by using determinant this is the formula all right by using determinant this is the basic formula look at this हाँ very important note here if अगर if delta अगर area of triangle is 0 है then the Collinear. given points are collinear beta when the given पॉइंट्स आर कोलिनियर। points are collinear ठीक है समझ लीजिए any doubts are you able to follow the face Lepakshi Reddy Yes, sir. I'm following. very good beta so next we'll talk about minors means let us denote with EMIJ ठीक है how to find minors so ये माइनस होता है बेटा ये दो देख लो डिटर्मिनेंट corresponding to the elements determinant corresponding to the elements all right so if I talk about let us say example 1 2 3 4 here अरे यार ऐसा करते हैं इसको मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है हाँ so how to find minors of this matrix how to find minors so two people are in waiting room who is that look at this here so corresponding element determinant corresponding to the elements I told right so how can I find it out look at this here so if I talk about this so if I talk about minor of 1 1 what is minor of 1 1 here 1 1 matlab first row first column what is that I have to close this one so I have to write this 5 6 8 9 which means this into this into this so how much 5 9 45 minus 48 कितना आया मुझे -3 so minor of 1 2 is what I have to close this and this one so what I remain with 4 6 7 9 how do I write now tell me 4 into 9 36 minus 42 minus 6 so minor of 1 3 कितना minus of 1 3 कितना 4 5 7 8 so कितना 32 minus 3 so this is how you can find out minor of 1 2 1 2 3 everything clear so now look at this now simultaneously this is how minors find out for remaining find out the minors of rest position
ऑलराइट चिल्ड्रन, हाउ आई एम फाइंडिंग करस्पॉन्डिंग, उसको क्रॉस करना चाहिए वो, you have to just strike out the particular row and particular column of that element and just take remaining elements and solve the determinant of that. That is your minor. All right, all right. हाँ, cofactors of any Cij, I'll be denoting with the Cij. कोफैक्टर्स मतलब देखो, कोफैक्टर अगर माइनस आ रहा है तो कोफैक्टर्स बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला होता है Cij इज इक्वल -1 टू द पावर ऑफ I प्लस j इनटू माइनस Ij। क्या सर इतना बड़ा फॉर्मूला लिखवा दिया? नहीं भाई, देखो देखो मैंने अभी देखो C11 कोफैक्टर ऑफ C11 क्या होता है? देखो C11 -1 टू द पावर ऑफ C11 है ना, 1 I इज इक्वल टू हियर व्हाट इज I इज 1, j इज व्हाट 1, सो 1 + 1 इनटू मेरा क्या मिला, माइनर ऑफ 1 क्या है था -3, तो -1 टू द पावर ऑफ 2 इनटू -3, so -1 होल स्क्वायर, नेगेटिव टू द पावर ऑफ ऑलवेज गिव्स मी पॉजिटिव, so positive into 3 -3, तो कोफैक्टर ऑफ दिस वन इज व्हाट 3, so कोफैक्टर ऑफ 1 2 इज व्हाट, देखो 1 2 1 + 2 व्हाट आई गॉट हियर -6, so क्या -1 पावर ऑफ 3 -6, so minus into minus plus 6. You can find out for rest of the things. Clear? So minors, cofactors. After finding cofactors, guys, you will be having adjoint. How to do adjoint? See, guys, I'm just teaching a bit fast. Why? Because everyone have done with the matrices lesson. So let us solve the questions. So ठीक है. So adjoint क्या होता है? Transpose. Cofactor transpose. ये होता है बस. ठीक है. All right, children. Any doubt here? Any doubt? No, sir. Any doubt? So this is what the basic concept of your minors and cofactors. I hope you guys are understanding this. Clear? ठीक है? Yes, sir. Any doubt? No, sir. No, sir. अच्छा, तो guys everyone should revise the notes. ठीक है, नोट्स रिवाइज करने से ही फायदा होता है, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं। Okay. हाँ guys, how many have you done with your matrices lesson in your school? Like Lepakshi? Sir, only IP point of view, sir, not बोर्ड। अच्छा ठीक है, ओनली आईपी पॉइंट ऑफ व्यू डन, तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ? Yes, yes, sir.